میں اپنے شوہر کا کپڑوں والا بیگ تیار کر رہی تھی کیونکہ کل اس نے واپس سعودی عرب چلا جانا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت تو نہیں گزارا تھا، مگر کچھ وقت اس کے ساتھ رہ کر اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اب مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میں اپنے شوہر کے بغیر کیسے رہوں گی۔ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، 1 مہینہ ہی تو ہوا تھا۔ اگلے روز میرا شوہر پردیس جانے کے لیے سب سے ملاقات کر رہا تھا، اور جب وہ میرے پاس آیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، فکر مت کرو، میں 6 ماہ بعد ہی عید الفطر پر واپس آ جاؤں گا۔ ایسے رو کر اپنی آنکھیں خراب مت کرو، ورنہ میرا بھی جانے کو دل نہیں کرے گا۔ اپنے شوہر کی اتنی محبت دیکھ کر میں باغ باغ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف اپنے شوہر کی محبت کو الوداع کہنا پڑ رہا تھا، تو دوسری طرف میں اس لیے بھی خوش تھی کہ وہ میری فکر کر رہا ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میں 1 مہینے میں اپنے شوہر سے اتنی محبت کرنے لگوں گی، مگر میں نے اپنے شوہر سے اتنی ہی محبت کی اور اس نے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کی تھی۔ شوہر جاتے وقت کہنے لگا کہ تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو تم اپنے دیور سے کہہ کر منگوا لینا، وہ تمہیں سب کچھ لا کر دے دے گا۔ شوہر کے جانے کے بعد میں ایسے ہی کرتی، اپنے سارے کام جو باہر کے ہوتے وہ اپنے دیور سے کہہ دیتی، وہ بھی خوش ہو کر میرے سارے کام کر دیتا۔ کچھ اس وجہ سے بھی وہ میرے سارے کام کرتا تھا کہ اس کا بھائی اس پر ذمہ داری ڈال کر گیا تھا، اور دوسرا میں اس کی پہلی بھابھی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتا تھا۔ وہ میری بہت فکر کرتا تھا۔ اس نے مجھے شوہر کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی، لیکن میرا شوہر تو میرا شوہر تھا اور دیور تو میرے بیٹوں جیسا تھا۔ میرا دیور میری بہت دیکھ بھال کرتا۔ انہی دنوں میری حالت کچھ خراب رہنے لگی، مجھے ہر وقت بخار رہتا اور دیور سے کہتی کہ پاس والے میڈیکل سٹور سے مجھے دوا لا دو، مگر اسے میری فکر ستائی جا رہی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر کو دکھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا بہترین علاج کر سکے۔ مگر میں جانتی تھی کہ مجھے صرف بخار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تبھی میرا دیور کہنے لگا کہ آپ کا علاج ضروری ہے، بخار تو اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس پر ہر وقت میرے سر میں درد رہتا تھا، ساتھ ہی متلی کا بھی احساس ہوتا۔ ہمارے گھر میں کوئی بڑا موجود نہیں تھا۔ میرے شوہر کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرا شوہر اور میرا دیور ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ شوہر کے پردیس میں ہونے کی وجہ سے دیور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں جا کر مجھے علم ہوا کہ میں حاملہ ہوں، اور یہ بات جب میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو اسے پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر جب اسے یقین آیا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ میرے دیور کا بھی یہی حال تھا، پہلے تو وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا اور پھر خوشی سے ناچنے لگا۔ میں تو ان دونوں کی محبت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان کے گھر والوں نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی تھی، مگر اکثر اوقات جو سامنے نظر آتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ایسے ہی ہم لوگ جو ایک مرتبہ میں دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ انسان کیسی تربیت کا مالک ہے، ہو سکتا ہے ویسا کچھ نہ ہو۔ اپنے دیور کی خود کے لیے محبت دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ میرا شوہر یہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے دیور نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تھی۔ میری ہر ضرورت میرے کہنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ مجھے وہ اپنے بچوں جیسا لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور عید الفطر سے کچھ دن پہلے دیور نے مجھے بتایا کہ آپ کا شوہر عید پر واپس نہیں آئے گا، بلکہ اس نے ہمیں وہاں بلوایا ہے۔ کاغذات مکمل کروانے کے بعد میں دیور کے ساتھ سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی، مگر ایئرپورٹ پر پہنچ کر میری چیخیں نکل گئی جب وہاں کی پولیس نے مجھے، میرا نام شازیہ ہے، میری عمر 24 سال ہے، میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں سادی سی خاتون تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر نوجوان تھی، اور جوانی کا حسن تو بدصورتوں پر بھی آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں حسین دکھتی تھی۔ اماں میرا رشتہ دیکھ رہی تھی، تبھی ایک روز 2 بھائیوں کا رشتہ آیا۔ دونوں سکے بھائی تھے۔ ان کی خالہ نے ان کے چھوٹے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا اور میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اماں کو بھی لڑکا بہت پسند تھا، ان لوگوں کو بھی میں پسند آئی تھی، مگر نہ جانے اچانک ایسا کیا ہوا کہ لڑکے نے رشتے سے انکار کر دیا۔
तभी उसकी खाला ने कहा कि हम लोग लड़के के बड़े भाई के लिए आपकी बेटी का रिश्ता ले लेते हैं। अम्मा तो इस बात के खिलाफ थी, मगर अब्बा ने कहा कि अगर बड़ा बेटा भी अच्छा है तो शादी कर देते हैं। क्या पता मुमकिन है कि छोटे बेटे को कोई और लड़की पसंद हो। फिर सब घर वालों ने अब्बा की बात पर सर झुका दिया था, मगर ये सब मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई कबीरा गुनाह कर दिया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। मेरी शादी सर पर थी, घर भर में शादी की तैयारियां हो रही थीं। मैंने भी सब कुछ भुलाकर बढ़ चढ़कर अपनी शादी में हिस्सा लिया। मैं बहुत खुश थी, ये सोचकर खुद को तसल्ली दे दी कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हो सकता है मैं बड़े भाई को पसंद आई हूँ। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा निकाह होना था। मैं दुल्हन बनी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी प्यारी लगूंगी। जो मुझे देखता वो मुझे देखता ही रह जाता। मैं सब कुछ देख रही थी कि रुखसती का शोर उठा। मैंने सुन रखा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा देवर और मेरा शोहर ही हैं। माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। घर में हर तरफ मैं ही थी। कोई मुझसे मिल रहा था तो कोई रो रहा था। मगर एक बात जो बहुत हैरत अंगेज थी वो ये कि जब मैं रुखसत होने लगी तो अम्मा कहने लगी, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया है, बेचैनी लगी हुई है, ऐसी घबराहट हो रही है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अम्मा की बात सुनकर मैं भी घबरा गई। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है, ज्यादा मत सोचे। अम्मा कहने लगी कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, यकीनन कुछ तो है जो हम लोगों को नजर नहीं आ रहा। इसी दौरान मेरा देवर आया और कहने लगा, भाभी चलें भाई, गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। मैंने अम्मा को अलविदा किया और देवर के हमरा जाकर गाड़ी में बैठ गई। ससुराल गई तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मेरी शादी बहुत अजीब अजीब किस्म से हो रही थी, ना ही कोई रस्मात हुई और मैं सीधा कमरे में चली गई। यहाँ तक कि मुझे मेरे कमरे में भेजने वाला मेरा देवर ही था। मेरे दिलो दिमाग में मेरे देवर को लेकर कुछ भी नहीं था, ना ही कोई बदगुमानी और ना ही कोई अच्छाई। उसके बताने पर मैं कमरे में चली गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा शोहर कमरे में आया और आकर बगैर सलाम दुआ किए बस यही कहने लगा कि कोशिश करना कि मेरे भाई का तुम्हारी वजह से दिल ना दुखे। मैं उसके ऐसे रवैये पर एकदम से घबरा गई थी। मेरा शोहर इतनी बेरुखी से मेरे साथ पेश आ रहा था। घर आकर तो मुझे वो खाला भी नजर न आई जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था, और उनका कहना था कि वो मेरे शोहर की खाला है। मगर कुछ देर बाद मेरे शोहर अब्दुल्ला का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो एक अच्छे इंसान साबित हुए थे। पहली रात का जो डर खौफ था वो तो जैसे खत्म ही हो गया था, क्योंकि मेरे शोहर ने फिर कभी दोबारा ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मेरी शादी को अभी एक हफ्ता हुआ था जब मुझे अपने देवर की हरकतें कुछ मशकूक सी लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो कुछ और है और मुझे कुछ और नजर आ रहा है। एक मर्तबा तो मैं पूछना चाहती थी कि उसने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया था, जबकि मैं अपने शोहर से बहुत छोटी थी लेकिन अपने देवर की हम उम्र थी। मगर फिर ना जाने क्या वजह थी कि उसने तो मुझसे शादी से इनकार किया था। मैं दानिस्ता तौर पर अपने देवर पर नजर रखती थी। मुझे यकीन था कि मेरा देवर कोई गलत कामों में मुलविस है। वो आधी आधी रात तक घर से बाहर होता और जब घर आता तो अजीब से अंदाज में मुझे देखता। मेरा दिल चाहता कि मैं अपने शोहर से देवर की शिकायत करूं, मगर ना जाने मेरा शोहर मेरी बात सुनकर क्या रद्दे अमल जाहिर करता। अभी तो मेरी शादी को इतना अरसा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने अपने शोहर से कुछ नहीं कहा। मेरा देवर हर वक्त फोन अपने हाथ में रखता। ना जाने वो ऐसा कौन सा काम था जिसमें उसको हर घंटे के बाद एक कॉल आती और वो सुनते हुए बस इतना कहता कि अगला माल तैयार है। अगर मैं उसकी तरफ गौर से देखती तो वो एकदम से घबरा जाता। मुझे अपने देवर की ये हरकतें बहुत अजीब लगती थी। एक दो मर्तबा शोहर से सिर्फ इतना पूछा कि देवर क्या काम करता है, तब वो कहने लगा कि जमीनों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। मैंने भी नजर अंदाज कर दिया मुझे भला क्या मसला होना था, मगर ये बात मेरे दिमाग में किसी कांटे की तरह चुभी हुई थी कि मेरे देवर ने मुझसे रिश्ते से इनकार क्यों किया था। हम कितनी जल्दी किसी को देखकर कुछ भी सोच लेते हैं, वो अंदर से कैसा है
हमें कुछ पता नहीं होता। मेरी भी यही गलतफहमी तब खत्म हुई जब मेरा शोहर वापस सऊदीया जाने के लिए तैयार था, क्योंकि वो परदेश में जॉब करता था। हमारी शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ था, 1 महीने का वक्त तो पर लगाकर उड़ गया था। इस 1 महीने में तो मेरे शोहर ने मुझे खूब ऐश करवाए थे और जाते हुए मुझे कहने लगे कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मेरे भाई इशफाक से कह देना, वो तुम्हारा हर काम कर देगा। मैंने अपने शोहर से कहा कि इशफाक को कहना जरूरी है क्या, मैं अपने काम खुद करती हूँ। तभी शोहर कहने लगा, नहीं, मैं मुल्क से बाहर हूँगा, हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए वो इशफाक से कह देना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं ईद उल फितर से पहले ही वापस आ जाऊंगा। फिर अगले रोज मेरा शोहर तो परदेश चला गया। तब मेरा देवर कहने लगा कि भाभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो आपने बस मुझे एक मर्तबा कह देना है, मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगा। वो इतनी नरमी से मेरे साथ पहली मर्तबा बात कर रहा था, मगर मुझे बस एक ही फिक्र सताई जा रही थी कि मैं यहाँ पर तन्हा कैसे रहूंगी। मेरे शोहर के जाने के बाद मेरा देवर बहुत ख्याल रखने लगा। मुझे तो अब हैरत होती थी कि ये वही है जो मुझे कभी बुलाता तक नहीं था। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे कभी बातें करता तो कभी मुझसे काम का पूछने लगता। शायद वो मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता था, बहुत मुश्किल से सही, मगर अब मेरा अपने ससुराल में दिल लगने लगा था। देवर वैसे तो सारा दिन घर से बाहर रहता था, मगर जब जब मुझे कोई काम होता तो मैं उसे बुला लेती और वो भी भागा भागा चलाता था। आज तक उसने कभी मुझे किसी काम से इनकार नहीं किया था। एक रोज मैंने अपने देवर को फोन किया और कहा कि मुझे राशन चाहिए। तब वो दूसरी तरफ से एक दूसरे मोबाइल पर किसी से कह रहा था, आज रात तुम्हारा काम हो जाएगा। मगर अब की मर्तबा मैंने नजरअंदाज कर दिया कि मैं जान गई थी देवर का काम ही ऐसा है। देवर से बात करने के बाद सोचा कि क्यों न अपने शोहर से बात करूं, क्योंकि अपने शोहर से बात किए हुए मुझे पूरा हफ्ता हो चुका था। शोहर ने मुझे कहा था कि ये पूरा हफ्ता वो बहुत मसरूफ रहेगा, इसलिए मैंने भी उसे तंग नहीं किया। मगर अब जैसे मैंने फोन किया तो शोहर का नंबर कहीं और मसरूफ जा रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे शोहर का फोन आ गया। मैं उससे बात करने लगी। हाल अहवाल पूछने के बाद मैंने कहा कि इतनी खामोशी क्यों है। वो कहने लगा कि मैं घर पर हूँ, आज कुछ तबीयत नासाज थी, मुझे अपने शोहर की फिक्र होने लगी थी। मैं उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। तभी वो कहने लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम फोन बंद करो। मैंने फोन बंद ना किया। मुझे लगा कि शायद शोहर ही फोन बंद कर देंगे, मगर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मेरे शोहर के पास से एक लड़की की आवाज फोन में से सुनाई देने लगी। तब तो मेरे होश उड़ गए। मैं कौन सा छोटी सी बच्ची थी जो बातों को समझ ना पाई। मैंने बहुत गौर से उस लड़की की आवाज सुनी थी, क्योंकि ये मुझे अपना वहम लग रहा था। मेरे शोहर का कहना था कि वो काम पर नहीं गया, तो फिर उस लड़की की आवाज कहाँ से आ रही थी। मेरा सारा वक्त सोचों में गुजर गया। शाम के वक्त जब मेरा देवर आया तो मुझे परेशान देखकर एकदम से घबरा गया और कहने लगा कि क्या हुआ है, सब ठीक है। तब मैंने देवर से कहा कि हाँ, सब ठीक है, बस ना जाने क्यों एकदम से दिल बेचैन हो रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो कहने लगा कि भाभी, क्या गलत हो सकता है, आप ज्यादा सोच रही हैं, इसलिए ऐसा महसूस होता है, ज्यादा मत सोचें। मैंने अपने देवर से कहा, क्या तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा भाई क्या काम करता है और कहाँ पर होता है? तो वो कहने लगा कि भाई वहाँ पर जॉब करते हैं, मगर आपके कहने पर मैं मजीद कुछ मालूमात ले लेता हूँ। मेरा शोहर दूसरे मुल्क नौकरी करता था। छोटा देवर रोजाना आकर मुझे सौदा सलफ ला कर देता और मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक रात देवर रोता हुआ आया और बोला, भाभी, भाई आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपके साथ रहने के काबिल नहीं है। उसने जो काम किया है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई इस तरह कभी निकल सकता है। मुझे अचानक से उस रोज वाली लड़की की आवाज मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मैंने अपने देवर से कहा कि क्या मतलब इस बात का, मुझे खुलकर सब बताओ। तब वो कहने लगा कि भाई अच्छे इंसान नहीं हैं, उन्होंने तो आपकी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मुझे मालूम होता कि मेरा भाई इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं तो मैं कभी उसकी आपसे शादी ना होने देता।
आप उनसे तलाक ले लें। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए कि भला मेरा शोहर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे अभी भी ऐसे लग रहा था जैसे देवर झूठ बोल रहा है। मेरे शोहर ने कुछ नहीं किया, वो भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। मैं उनकी बीवी थी, उनकी पसंद थी। उन्होंने आज तक मेरे साथ कभी गलत रवैया नहीं रखा था। फिर अचानक से क्या हो गया था। मेरे दिल में अजीबो गरीब से ख्यालात आ रहे थे। मैंने अपने देवर से कहा कि आखिर उन्होंने क्या किया है, पहले वो तो बताओ। तभी देवर कहने लगा कि नहीं भाभी, ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ऐसे मुझ पर भरोसा नहीं होगा। इसी वक्त एक अनजाने नंबर से मुझे फोन आने लगा। मैंने अपने देवर से कहा कि पहले ये फोन सुन लो। उसी वक्त मेरे देवर ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और कहा अभी फोन सुनने का वक्त नहीं है, बस आप तैयारी करें, मैं 2 दिन में ही कागज बनवा लूंगा। आप और मैं सऊदी अरब जाएंगे, वहां जाकर भाई से बात करेंगे। मैं देवर की बातों में आ गई थी। 2 दिन बाद देवर गाड़ी ले आया और बोला बैग उठा ले, हमें एयरपोर्ट जाना है। यूं मैं उसके साथ चल पड़ी, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब देवर एक अनजानी सी जगह पर ले आया। वो जगह काफी अजीबो गरीब सी थी। मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे काफी हैरत हुई। मैंने अपने देवर से कहा कि ये कौन सी जगह है। तभी वो कहने लगा कि ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए था। मैंने झटके से अपने देवर की तरफ देखा और कहा क्या मतलब है इस बात का। उसके चेहरे पर मकरू हंसी देखकर मेरी जान निकलने को थी। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी वो कहने लगा कि काश मैं पहले रोज ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आता, कम से कम इतनी ख्वारी तो ना उठानी पड़ती, तुम्हारे इतने काम तो ना करने पड़ते, इतने चोंचले तो ना देखने पड़ते। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। तभी वो कहने लगा कि तुम जैसा माल घर में रखने के लिए नहीं होता, बल्कि बाजार में बेचने के लिए होता है। उसके इतने घटिया अल्फाज मेरे पैरों से जमीन खींच चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा देवर मुझसे ऐसी बात भी कर सकता है। मैंने अपने देवर से कहा कि कुछ तो शर्म करो, खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम जो मुझे धोखे से यहाँ लेकर आए हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसी वक्त मुझे फिर से किसी अनजाने नंबर से फोन आने लगा। मैं वो नंबर नहीं जानती थी। मैंने यस का बटन दबा दिया और फोन चलने लगा, मगर इस बात का इल्म मैंने देवर को नहीं होने दिया। मैंने उससे कहा तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। तभी वो कहने लगा कौन सा भाई, वो तो मेरा सौतेला भाई है। जब तो मैंने शादी से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऐन मौके पर तुम उसे पसंद आ गई थी। उसे तो चाहिए था कि उसके बदले वो सारी जायदाद मेरे नाम करके तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाता। अब्बा ने भी मरते वक्त सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी, मुझे एक छोटी सी कोठड़ी भी नहीं दी। मैं मानता हूँ कि मैं उसका सौतेला भाई था, मगर था तो अब्बा का खून ही। न जाने अब्बा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, मगर अब मैं अपने भाई का सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, उसकी इज्जत को भी नीलाम कर दूंगा। तभी मैंने उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा और कहा कि जो भी किया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया जाता। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इससे पहले कि वो मुझे कहीं लेकर जाता, हर तरफ पुलिस का सायरन बजने लगा था। हमारे चारों तरफ पुलिस खड़ी हो गई थी। मैं तो हैरानी से देखने लगी थी। मेरे देवर के तो रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उसी वक्त मुझे छोड़ा और वहां से दौड़ लगा दी, मगर पुलिस से बचना कौन सा आसान काम था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी अचानक से मेरा शोहर न जाने कहां से आ गया था। मैं अपने सर का साया देखकर जल्दी से भागकर उसके पास गई और रोते हुए उसे सब बताने लगी, मगर मेरे शोहर ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब मालूम हो गया है। इसकी शिकायतें मुझे परदेश में भी मिल रही थी। ये तो पहले भी ऐसा ही था, मगर इसने मुझसे वादा किया था कि अब वो मेरे साथ सके भाइयों की तरह रहेगा, मगर ये बिल्कुल भी नहीं बदला। अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं बगैर बताए वापिस आ गया हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरे भाई के दिल में मेरे लिए इतना हसद होगा। काश कि ये मुझे पहले कह देता, मैं अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर देता।
मुझे भला इन पैसों की क्या जरूरत थी? मेरे देवर को पुलिस पकड़ कर ले गई थी क्योंकि वो लड़कियों का कारोबार करता था। ये तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं भी इतने अरसे से उसके साथ रह रही थी। ये सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी, मगर मेरे शौहर ने मुझे बहुत जल्द संभाल लिया। उसने कहा कि अब वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, इसलिए मैं परेशान ना हूँ। उसके बाद मेरा शौहर मुझे बाहर के मुल्क लेकर आ गया। मैंने उससे माफी मांगी कि मैंने तुम पर शक किया, मुझे उसके लिए माफ कर दो। तब वो कहने लगा कि तुम्हारा शक करना दुरुस्त था, मगर मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। उस वक्त मेरी हालत काफी खराब थी। मेरे दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की ने मेरे सारे काम किए थे, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में रहती थी। तुम परेशान हो रही थी कि मैंने तुमसे शादी की और धोखा दिया है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए अपने दिल से वहम निकाल दो और एक मर्तबा फिर मुझ पर एतबार करके देखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा एतबार ना तोड़ूं। मेरे देवर ने जो मेरे साथ किया था, उसके बाद भरोसा करना बहुत मुश्किल था, मगर मेरे शोहर ने बहुत सब्र से काम लिया और मुझे इतना वक्त दिया कि आज मैं उसके साथ हंसी खुशी रह रही हूँ।